Hello students, let's continue the chapter life processes. We have discussed in life processes mainly two topics, nutrition in plants and animals. Then we discussed the respiration in plants and animals. Today we are going to discuss the transportation in organism. In this video we are going to discuss the meaning of transportation in unicellular and multicellular organism, and in detail we will discuss the transportation in plants. Let's start the topic. First of all, we must know that what do we mean by the word transportation. Transportation, which is also known as circulation. It is the movement of glucose, oxygen and other inorganic substances from one part of the body to other is known as internal transport of materials or transportation. Students, what is transportation? The movement of molecules or substances like glucose, oxygen, कोई भी substance हो सकता है, from one part of the body to other. It means that transportation or circulation is inside the body of organism. It is the internal transport of materials. This is transportation. So, the organs which are associated with the transport of these substances, they form the transport system. जो organs इस transportation में help करते हैं, they form the transport system. On the basis of type of organism, transportation is of two types. First is the transportation in unicellular organism, and second, transportation in multicellular organism. First is transportation in unicellular organism. In unicellular organisms like amoeba, paramecium, euglena, the body size is very small. जैसे हमें सभी को पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, विच हैव द सिंगल सेल. द यूजफुल सब्सटेंसेस डिफ्यूज इन. उनकी बॉडी में क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस लाइक फूड, ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, दे डिफ्यूज इनसाइड द बॉडी, मतलब वो बॉडी के अंदर आते हैं. एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस दे डिफ्यूज आउट, वो बाहर जाते हैं. हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से, लाइक यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज हार्मफुल सब्सटेंसेस. सो दिस डिफ्यूजन इन एंड डिफ्यूजन आउट. सो वी कैन से दैट द ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स is through the process of diffusion. And what do we mean by diffusion? The movement of particles from high concentration to low concentration. अगर हमारी बॉडी में किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है तो वो बाहर जाएंगे, लो है तो बाहर से अंदर आएंगे. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी मीन्स मैनी सेल्स. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स every cell is not exposed to the external environment. आप सभी को पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती है, तो सभी की सभी सेल्स अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होती. एवरी सेल कैन नॉट फीड, कैन नॉट ब्रीथ एंड सिमिलरली कैन नॉट एलिमिनेट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट. हर सेल जो है वो अपने बाहरी एनवायरनमेंट के साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होती. दैट इज व्हाई दे हैव ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैटर्स टू देयर नीड्स. तो वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है, किस तरह का होता है, फ्रॉम सेल टू सेल. ठीक है, जो सेल बाहर के एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, दैट टेक्स द मटेरियल इन. उसके बाद सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन होती है. In this way, transportation or circulation of various materials takes place. Now we are going to discuss the transportation in plants. Transport system in plants is simple and slow. Why it is simple? Why it is slow? Because the plants do not move. So the energy needs
of the plants is much less than in animals. Students, you know that animals move. They show the locomotion. Why? They move in search of food for their protection. ठीक है, अपना फूड ढूंढने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर के लिए, शेल्टर के लिए वो मूव करते हैं. तो एनर्जी नीड्स जो है वो उनमें बहुत हाई होती है. बट प्लांट्स एक ही जगह पर खड़े रहते हैं. ठीक है, तो उनकी एनर्जी नीड्स जो है वो बहुत कम होती है. सो देयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज सिंपल एंड स्लो. You can see that how the molecules transport. The roots of a plant, they absorb the water and minerals from the soil. As you can see in this picture that the roots of a plant are absorbing the water and the minerals. How the minerals? In the dissolved form. They absorb them. And the water and mineral pass up through xylem tissue along a gradient of water potential. अब gradient क्या है? Gradient of water potential क्या है? Soil में water ज़्यादा है, minerals ज़्यादा है, means high concentration. और plant के अंदर mineral कम है, water कम है, means low concentration. So these molecules, these minerals and water molecules, they move along the concentration gradient, means high concentration to low concentration. Necessity of transport system in plants. Why it is necessary? What is the need of transportation system? Transport system is essential for the movement of the vital substances from sources to sink. Transport system क्या है? Essential है. किस लिए? For the movement of the vital substances. Vital substances क्या? Like oxygen, glucose, they are the vital necessary substance from source to sink. सोर्स क्या होता है? जहां पर कोई चीज सिंथेसाइज होती है. लाइक लीव्स. लीव्स क्या बनाती हैं? फूड. दैट इज द सोर्स ऑफ फूड. एंड सिंक, जहां पर भी स्टोर होता है. लाइक फ्रूट्स, रूट्स. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स. प्लांट्स क्या करते हैं? रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं. बट दीज आर नीडेड इन लीव्स आल्सो. बट वो वाटर और मिनरल सिर्फ रूट्स को ही तो नहीं चाहिए, लीव्स को भी चाहिए. Hence, a transport system is needed for their transportation to leaves. Food synthesized in leaves need to be distributed throughout the plant body to the tips of root. अब food कहाँ बनता है plants में? Leaves में बनता है with the help of photosynthesis. That is needed to be distributed to the tips of the root. तो leaves से लेके food पूरी plant body में circulate होना है. For that also plants need the transportation system. Next is the types of transport system in plants. Students, there are basically two transport system in plants. First one is xylem transport system and second one is phloem transport system. मैंने अभी बताया xylem that helps in the transportation of water and minerals, and phloem that helps in the transportation of food. So xylem transport system is system to absorb and transport water and minerals from roots to the leaves. ठीक है. In phloem transport system, that is a system to distribute food from leaves to all the parts of plant. Now we will discuss them one by one. Let's start the xylem transport or the transport of water and minerals. This is also known as ascent of sap. Xylem tissue forms the water conducting system throughout the plant body. Tissues के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि xylem tissue that is responsible for the conduction of water, or we can say that is responsible for the conduction of the liquid food. Xylem vessel and tracheids of the roots, stems and leaves, they are interconnected. Xylem के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, हमने डिस्कस किया था. वेसल्स, ट्रैकीड्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स. मेनली जो है वो वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ द रूट्स, stems and leaves, they are interconnected. They form a continuous system of water conducting channel. You can see in this picture that there is no gap
It forms a continuous system of water conducting channel. The upward movement of water and mineral salts from the roots to the aerial parts like leaves, branches, flowers, etc. of the plant against the gravitational force is called ascent of sap. Ascent means upward movement, sap means water. वाटर की या लिक्विड फूड की जो अपवर्ड मूवमेंट है दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप. ठीक है. सो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स. एब्जॉर्ब कौन करता है वाटर को? रूट्स. और कहाँ तक जाएगा? टू द एरियल पार्ट्स. एरियल पार्ट्स कौन से हैं? लाइक लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, दे आर द एरियल पार्ट्स. एंड इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल force. Now we will discuss that the causative forces of ascent of sap. Means what are the forces which are responsible for ascent of sap? There are two main forces. First one is root pressure and second one is transpiration pull. First we are going to discuss the root pressure. The name is indicating pressure in the roots. The root pressure is a force exerted within the root of a plant. प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ एक फोर्स एक्सर्ट होती है. और ये क्यों होती है? इट डेवलप्स इन द रूट सेल्स बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी. टर्जिडिटी क्या होती है? स्वेलिंग. रूट प्रेशर कॉजेज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स. स्टूडेंट्स ये देखो होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो सॉइल के अंदर वाटर या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं they are absorbed by the root hairs of the roots. अब जो रूट हेयर्स हैं उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया. ठीक है. जिसकी वजह से जो वो रूट सेल है दैट इज स्वॉलन, मीन्स टर्जिड. स्वॉलन होने की वजह से वहां पर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है विच इज नोन एज रूट प्रेशर. अब ये जो प्रेशर है ये उस लिक्विड को, उस वाटर को नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए फोर्स करता है. इन दिस वे द वाटर मूव फ्रॉम सेल टू सेल and it goes to the tip of the plant system. Next force is the transpiration pull. In this we are going to discuss forces like cohesion and adhesion of the water and transpiration pull. Three terms: cohesion, adhesion and transpiration pull. First we must know what is cohesion. Students, cohesion means the force of attraction in the molecules of same substance. Cohesion of water is due to the binding of water molecules amongst themselves by hydrogen bonding. Cohesion force क्या होती है? वो फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, लाइक वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कोहेजन फोर्स. And the different water molecules are connected to each other by the hydrogen bonding. Oxygen atom of one water molecule and hydrogen atom of other water molecule, they are connected by the hydrogen bond. So this is the cohesion force. Cohesion force क्या है? जो similar molecules में होती है. Next is the adhesion force. Adhesion is the binding force between water molecules and the xylem vessels. एडेशन फोर्स वो होती है बच्चों जो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है. आप कोई भी गम यूज करते हो, पेस्टिंग के लिए कोई भी चीज यूज करते हो, उसके ऊपर लिखा होता है एडेसिव. एडेशन फोर्स इज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. हियर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वेसल. वाटर कहाँ मूव कर रहा है? जाइलम वेसल में मूव कर रहा है. तो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज एडेशन. तो कोहेजन फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, एडेशन फोर्स जो जाइलम वेसल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वो वाटर को ऊपर तक स्ट्रेट ले जाने में हेल्प करती है, एक कॉन्टिन्यूस चैनल बनाती है. इसकी वजह से जो वाटर का चैनल है वो ब्रेकअप नहीं होता. देयर इज द स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू द जाइलम ऑफ रूट्स. अभी बताया था मैंने आपको कि जो रूट्स है वहां से वाटर कहाँ जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में. द जाइलम वेसल ऑलवेज कंटेन वाटर एज ए कॉन्टिन्यूअस कॉलम. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म.
जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम वेसल के अंदर, जो वाटर प्रेजेंट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉलम फ्रॉम द रूट टिप टू द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉलम होता है वहां पर. ठीक, बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडेशन. वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. थर्ड टर्म इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द लीव्स. और लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्या है? पोर्स. उन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन. द वाटर कॉलम बिकम ग्रेटली स्ट्रेच्ड. जब ऊपर से लॉस ऑफ वाटर होगा तो जो नीचे से वाटर कॉलम चलता आ रहा है दैट इज स्ट्रेच्ड, बट वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक. वो टूटता नहीं है, अभी बताया मैंने. वाई? ड्यू टू कोहेजन फोर्सेस अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एडेशन फोर्स between the water molecule and the walls of the xylem vessel. तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? वाटर कॉलम स्ट्रेच होता है. बट स्ट्रेच तो होता है, अगर आप किसी थ्रेड को स्ट्रेच करते हो तो वो टूट जाता है. पर ये जो वाटर कॉलम है ये स्ट्रेच होने की वजह से नहीं टूटता. वाई? बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडेशन. नाउ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ट्रांसपिरेशन अभी बताया मैंने आपको, लॉस ऑफ वाटर. अब ऊपर से अगर लॉस ऑफ वाटर होगा तो रूट से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती जाएगी. सो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एज इट कूल्स द लीव्स एंड द सराउंडिंग एयर. ट्रांसपिरेशन से टेम्परेचर रेगुलेट होता है. So we can say the cohesion, adhesion, tension of chain of water molecules and transpiration pull help in the upward movement of water from roots to the apex of the tree. हम क्या कह सकते हैं? Cohesion, adhesion and transpiration pull. These three are responsible for the upward movement of water during daytime. Daytime में क्या होता है? Stomatal pores are open. The transpiration pull is the major driving force for ascent of sap. दिन के समय में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ascent of sap होता है. Why? During daytime में क्या है? Stomatal pores are open, so there is maximum loss of water. So we can say that transpiration pull is the major driving force for the ascent of sap. But during night there is no transpiration, or we can say that less rate of transpiration. So at that time root pressure is more effective. So students, the root pressure, transpiration pull, cohesion, adhesion, these are the main forces which are responsible for the upward movement of water. Now we are going to discuss the transport of food and other substances, or we can say the translocation of organic nutrients. The transport of organic solutes, which we mean by food, from leaves to the different parts of the plant is termed as translocation. बच्चों, फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में? इन द लीव्स, बिकॉज लीव्स आर ग्रीन, दे हैव द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में. अब फूड सिर्फ लीव्स को तो नहीं चाहिए, पूरी प्लांट बॉडी को चाहिए. आप लोग फूड कहाँ से खाते हो? अपने माउथ से खाते हो, पर रिक्वायर्ड तो पूरी बॉडी को है ना. ठीक है, तो आपके माउथ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ड्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये जो फूड लीव्स में बना है ये सारे प्लांट पार्ट्स में कैसे जाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, और वी कैन से ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स. द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स अकर्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यू. वाटर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था? जाइलम टिश्यू. फूड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम टिश्यू. दिस इज द सिंक एंड द सोर्स. मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंक रीजन वेयर इट मूव्स, वेयर द फूड इज रिक्वायर्ड, बट सोर्स वेयर द फूड इज synthesized. Here you can see that source is the mature leaves, green leaves, where photosynthesis occur. photosynthesis कहाँ होता है? green parts में, green leaves में.
ठीक है, तो ये जो ग्रीन लीव्स है, मैच्योर लीव्स हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ फूड। और कहाँ कहाँ जाएगा सॉल्यूट, कहाँ कहाँ जाएगा फूड, कहाँ कहाँ जाएगा, जिस जिस रीजन में जाएगा, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स, जितने भी पार्ट्स में जाएगा प्लांट के, वो सभी क्या है, सिंक। तो फूड कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है, जहाँ पर फूड इज सिंथेसाइज्ड, सिंक वेयर द फूड इज यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड। फूड स्टोर भी होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ऐसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी फूड जो है वो स्टोर होता है। द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ बाय फोटोसिंथेसिस enters the sieve tubes of the phloem as sucrose and is transported as a dilute aqueous solution to all the plant parts. Food बनता कहाँ है, लीफ सेल्स में। कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये कहाँ एंटर करता है, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। मैंने आपको फ्लोएम के कंपोनेंट्स बताए थे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पेरेन्काइमा, फाइबर। तो किसके थ्रू मूव करेगा, जैसे वाटर किसके थ्रू मूव कर रहा था, जाइलम वेसल्स के थ्रू, तो फूड किसके थ्रू मूव करेगा, सीव ट्यूब्स के थ्रू। ठीक है, वाटर की मूवमेंट के लिए हेल्प कौन कर रहा था वेसल्स को, ट्रैकिड्स। फ्लोएम की सीव ट्यूब्स को हेल्प कौन करेगा, कंपेनियन सेल्स। कंपनी देनी है ना कंपेनियन सेल ने, सपोर्ट करना है। एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड एज ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन टू ऑल द प्लांट पार्ट्स। Students, you can see in this picture that in the phloem the food particles are present and along the phloem the xylem is also running. होता क्या है, फ्लोएम जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जाइलम से। अब जो फूड पार्टिकल्स हैं दे गेट डिजोल्व्ड इन द वाटर एंड दे मूव इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. The movement of the nutrients may be in the upward or downward direction to all the non-green parts of the plant for their growth and metabolic activities. Students, very important point, जो xylem tissue है वो water की movement के लिए responsible है, from roots to the upward direction. एक ही direction में move होता है, upward direction में और sides में, ठीक है ना, branches में भी तो जाएगा, but जो food है वो upward और downward दोनों direction में transport होता है. leaves कहीं पर भी है, leaves से शूट की टिप तक भी जाएगा और रूट की टिप तक भी जाएगा. ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट है या जो सॉलिड फूड है दैट इज इन द अपवर्ड एज वेल एज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. These substances are also delivered to the storage organs like roots, fruits and seeds etc. अब वहाँ से स्टोरेज ऑर्गन्स तक भी जाता है. स्टोरेज ऑर्गन कौन से है, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स, उनके अंदर फूड स्टोर होता है. The force required for translocation is produced by companion cells which lie adjacent to sieve tube cells in phloem. मैंने अभी बताया आपको कि sieve tubes की हेल्प कौन करता है, companion cells. Now we are going to discuss the steps of translocation. Very important 3 steps. First of all, there is the synthesis of food. Carbohydrates are continuously synthesized in the mesophyll cells of leaves. कार्बोहाइड्रेट्स या फूड या ग्लूकोज कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है. द सक्शन प्रेशर ऑफ दीज सेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच वाटर फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल्स इज एब्जॉर्ब. मैंने अभी बताया था कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करता है, साइड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. दिस पुशेस द डिजोल्व फूड इनटू द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम, जिसकी वजह से जो फूड जो कहाँ बना था, लीव्स में बना था, कहाँ चला जाता है, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में चला जाता है. अब फ्लोएम में आ गया, फ्लोएम से कैसे जाएगा, सिंस द फूड इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, फटाफट काम करना है, सो इट रिक्वायर्स द एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ड्यूरिंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू आर लोडेड एट सोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग. And it is unloaded at the sink or the consumption end. लोडिंग होती है, फ्लोएम टिश्यू जो है उसमें लोडिंग होती है, किस चीज़ की, फूड की. और कहाँ पर होगी लोडिंग, लीफ में होगी, क्योंकि फूड कहाँ बना है, इन द लीफ. सो देयर इज लोडिंग एट द सोर्स, सोर्स क्या है, लीफ. और अनलोडिंग कहाँ होगी, सिंक रीजन में.
सिंक रीजन कौन से हैं? रूट्स या स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक फ्रूट्स, सीड्स, ठीक है. नॉर्मली द लीव्स एक्ट एज द सोर्स and the roots or the storage organ of the plant, they act as the sink. So these are the steps of translocation. First is the synthesis of the carbohydrate, ठीक है. अब उन लीव से कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा? इन द सीड ट्यूब ऑफ द फ्लोएम. अब उस फ्लोएम से वो आगे जितने भी सिंक रीजन है, यानी कि रूट है या आपका फ्रूट्स है या सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, वहाँ तक मूव करेगा. So this was all about the transportation of the water and transportation of the food. Now we are going to taking a brief of the both the processes. हम फटाफट दोनों प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड फूड का फटाफट एक समरी सी देखते हैं. फर्स्ट, द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सबसे पहला काम क्या है? जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं? दे एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. After that, water and minerals, they are transported to the shoot system. Shoot system means the upper part of the plant, from roots through the tissue xylem. Water and minerals which are transported to the leaves through xylem. Leaves absorb the carbon dioxide through stomata. अब upper part तक चला गया water and minerals. Water and mineral leaves तक भी जाएंगे और leaves में क्या है? Stomatal pores है. तो वहां से द लीव्स एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ वाटर इज अवेलेबल, मिनरल्स आर अवेलेबल, सनलाइट इज अवेलेबल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल. व्हाट विल हैपन? इन द लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज डिफ्यूजेस आउट थ्रू द स्टोमेटल पोर्स. ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है, विच इज यूज्ड बाय द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है. और जो फूड होता है, what happens to that? Glucose that is transported to the shoot system through phloem. लीव से कहाँ जाता है? वो सारे शूट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होता है. Some of the glucose oxidized in the stem cells are stored and some translocated to the roots through phloem. कुछ ग्लूकोज जो है दैट इज ऑक्सीडाइज यूज हो जाता है, कुछ स्टोर हो जाता है एंड कुछ पार्ट जो है दैट इज ट्रांसलोकेटेड टू द रूट्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यू. फूड ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स थ्रू द फ्लोएम. अब कहाँ तक चला गया? रूट्स तक चला गया. रूट्स एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल एंड ऑक्सीडाइज द फूड. अब रूट्स क्या करती हैं? वहाँ पर फूड आ गया, दे एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन. कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल. ऑक्सीडाइज द फूड एंड रिलीजेज द carbon dioxide. In this way, the process of transportation of water and the solid food takes place. And we can say that the photosynthesis and the process of respiration go side by side in the plants. Well students, in this video we discussed the transportation system in unicellular animals, in multicellular organisms, and mainly in detail we discussed the transportation in plants. In my next video, we will discuss the transportation system in the human beings. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.